Well, friends, good morning. I'm Dr. Mandeep Singh. I welcome you to this new channel, ecotutorials. The objective of this channel is to provide you quality materials for the in the field of economics, especially for the students of CBSE +1, +2, and beside that, we are going to provide material for other boards also. And we are not going to concentrate only on +1, +2. As the time goes on, we will be providing you good material for various competitive exams. And objective of this channel is to provide a complete knowledge of Indian economy and various syllabi related courses. Now coming to today's lecture, my lecture is on measurement of national income method, which constitute an important part in CBSE economics +2. और ऐसा माना जाता है कि दिस चैप्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन +2. एंड what I will be doing, I will be making it very simple. और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऐसा समझा जाता है कि दे आर वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग टू do that. I'm trying to solve your problem and make this numerical part very easy. Now my lectures will be divided into three parts. Today's lecture will be focusing on income method of national income measurement, and second and third lecture will be on expenditure and value added method. You continue to follow my channel and you will be getting notifications and lectures. Now coming to today's lecture, measurement of national income method. Now national income is calculated on the basis of three methods: income, expenditure, value added method. Income method provides national income on the basis of factor income earned during an accounting year. This is expenditure on final goods and services during an accounting year, and this is market value of final goods and services during an accounting year. Now, before I move ahead, let me tell you some important things. Now, this income method, when you calculate income method by this method, this will be giving you NDP at FC. I will be telling you during my course of lecture. Beside these two, this will be providing you GDP at MP, gross domestic product at MP. You must be knowing that this NDP at FC, this is called domestic income, and NNP at FC, this is called national income. आप लोगों ने ये चीजें जब आपने +2 के ये इसके नेशनल इनकम की कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको पता है. लेकिन एनीवे आप उसको, मैं आपको ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ माय लेक्चर आपको बताऊंगा कि अगर ये टर्म्स हैं, इनको अल्टीमेटली जो टर्म आपसे मांगी गई है उस पर कैसे पहुंचना है. आई विल टेलिंग यू इन अ वेरी इजी वे. नाउ मूविंग फर्दर, coming to this income method. Now income method, this provides you national income on the basis of factor income earned. You know there are four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. The reward for their services in an accounting year, if we add that will be national income, and DP at factor cost, we will be getting domestic income. Now coming to what are the incomes of these factors, we come to this chart, income method. Sorry. Now income method, for land we get rent. I will be telling you rent and royalty. Now for income method we divide it into four parts. Four parts: compensation of employees, rent and royalty, interest, profit, mixed income. This is for
Factor income earned for doing any mental or physical work. I will be coming to that. This is for reward for the services of land or some copyright. I will be coming to that. This is reward for the services of capital. This is for risk taking, and this is the income of self-employed. I will be coming to all these. Now, first of all, first term we are going to deal is this compensation of employees. Now, what is this compensation of employees? Now, look at this word, compensation of employees. How the employees are compensated for their work. This is compensation of employees. Now, this compensation of employees, आप लोग ये देखो ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ये 4 चीजें आती हैं और इनके सब पार्ट्स क्या क्या आ सकते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है। सबसे पहले जो टर्म जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड की जाती है, दैट इज वेज एंड सैलरी in cash. That is any reward for mental or physical work done by workers. The reward for that is called wages and salary in cash. कि मैंने किसी फैक्ट्री में काम किया, शाम को मेरे को 50 रुपए मिल गए, so that will be my wages. Usually what we say that for physical labor we get wages and for mental labor we get salary. Now that is one thing. Then payments in kind. Now, what is this payments in kind? You just remember 4 terms. I'm going to explain these 4 terms in detail. Wage and salary I have explained. Now, payments in kind. Let us see. What is the payment in kind? कि आप काम कर रहे हो, beside wage और salary, आपकी firm आपको कुछ benefits देती है. Not in form of cash, but maybe in form of physical services, physical goods. फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री एकोमोडेशन इज गिवन टू यू, कि आपको रहने के लिए एक अच्छा सा मकान दे दिया, उसके लिए उसका रेंट जो है दैट इज पेड बाय द कंपनी, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम वर्क, कि आप घर से ऑफिस तक जाते हो, उसकी ट्रांसपोर्ट, यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू देयर वर्कर्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम देयर होम टू वर्क। देन व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज, कि ये पर्क्स में आते हैं कि आपको दिए जाते हैं व्हीकल्स, जो हायर ग्रेड पे एम्प्लॉयज होते हैं उनको व्हीकल्स दे देते हैं कि आप अपना ड्यूरिंग वर्क यू कैन यूज दिस। देन मेडिकल एक्सपेंसेस, कि आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका रीइंबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंस का फर्म करती है। एक्सपेंसेस ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, वो कोई आपके बच्चे की एजुकेशन पे वो दे मे बी पेइंग। देन मील्स वाइल ऑन बिजनेस टूर्स, कि आप जब कहीं बिजनेस टूर पे जाते हो तो आपको मील्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर फर्म ये दे रही है आपको। हो सकता है एक फर्म सिर्फ ये और सॉरी ये तो मैंने जैसे कहा कि जरूरी नहीं है कि ये फर्म आपको ये सब चीज़ें दे रही है। हो सकता है एक फर्म सिर्फ ये रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट दे रही हो सकता है एक फर्म आपको ये 3 दे रही हो सकता है एक फर्म ये 6 की 6 दे रही हो। आपने न्यूमेरिकल करते हुए जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालोगे तो वेज एंड सैलरी के साथ आपने देखना है इनमें से क्या चीज़ आपको दी हुई है। अगर तो टर्म कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दी हुई है दैट इट इज़ नो प्रॉब्लम, आप सीधा सीई ऐड करके न्यूमेरिकल पे आ जाओगे। लेकिन सपोज कर लो सीई की जगह पे दिया वेज एंड सैलरी, देन यू हैव टू लुक फॉर दीज टर्म्स। सेकेंड पार्ट अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। देखो वेज एंड सैलरी हो गया, दिस इज पेमेंट इन काइंड्स। अभी 2 पार्ट्स रहते हैं, आपको मैंने इस वेज एंड सैलरी एक्सप्लेन कर दिया, पेमेंट इन काइंड एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज employees contribution to social security। देखो what is this social security? That is when you are not working, when you retire from the job, तो आपको कुछ बेनिफिट्स आपकी सर्विस के कारण मिल जाते हैं, so that you are protected in the society, that is called social security।
नाउ व्हाट इज दिस? वन इज प्रोविडेंट फंड। हर महीने आपकी सैलरी में से एक पोर्शन कट जाता है एज प्रोविडेंट फंड से 10%। कि मेरी सैलरी अगर 100 रुपये है तो 10 रुपये फर्म काट लेती है, 10 रुपये इक्वल कंट्रीब्यूशन रेशो एज पर लॉ फर्म डालती है, ये अकाउंट में आपके चल जाता रहता है और अल्टीमेटली व्हेन यू रिटायर तो ये फंड आपको प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेचुटी एंड पेंशन प्रोविजन, पेंशन फॉर द सर्विसेज रेंडर, आपको रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन्स देते हैं। ग्रेचुटी, नो व्हाट इज दिस ग्रेचुटी? देखो इसका सिंपल सी बात है, फॉर दी कंप्लीटेड ईयर, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 15 days सैलरी is given as gratuity at the time of retirement. Then लाइफ इंश्योरेंस की हो सकता है कि फर्म आपकी लाइफ इंश्योरेंस करती हो, कोई इंश्योरेंस करती हो कि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको ये इंश्योरेंस मिलता है। इसी तरह दिस इज कैजुअलिटी कि काम करते करते अगर आपको कोई बाई चांस कुछ मिसहैप हो जाए देन वो कैजुअलिटी भी आपको कैजुअलिटी पेमेंट आपको दे दी जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is another important term, that is operating surplus. Now operating surplus, just wait, yes, now this is the most important term in income method, operating surplus. Now what is this operating surplus? Let us see. Now operating surplus, we say this is the sum of rent and royalty, interest and profit. That is rent is for the, you are using physical asset which belongs to somebody else, land, building, तो इसके रिटर्न में आप क्या देते हो? उसको रेंट देते हो। एंड व्हाट इज रॉयल्टी? यू हैव सम डिजाइन और यू हैव सम बुक, आप उसको रजिस्टर पेटेंट करा देते हो। अब उस बुक को या उस डिजाइन को, उस इन्वेंशन को, इफ समबडी इज यूजिंग, ही विल बी पेइंग यू रॉयल्टी। ओके, कॉपीराइट, पेटेंट, design patent, anything you are having, उसको if somebody else is using, he is paying royalty. आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कोई भी चीज़ अगर किसी को बिलोंग करती है, यू कैन नॉट यूज लाइक दैट, आपको उसका कॉपीराइट, आपको उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। देन इंटरेस्ट, दिस इज द रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल, वेरी सिंपल। प्रॉफिट, दिस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, आपको पता है प्रॉफिट का की डेफिनेशन, रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। नाउ प्रॉफिट एज ए पार्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज डिविडेंड, कि आप शेयर्स खरीदे हुए हैं आपने, तो फर्म की परफॉर्मेंस के बेस पे वो हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 10%, 5%, 2%, 1%, दैट यू आर गेटिंग। देन सेकेंड थिंग इज कॉर्पोरेट टैक्स, कि यू आर पेइंग सम टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज also part of profit, because this is paid out of profit, that's why corporate tax। undistributed profit or retained earning, firm कुछ profit का portion for future retain करके रख लेती है, that is called undistributed profit। now जब आप लोग न्यूमेरिकल करो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअल टर्म प्रॉफिट दी हुई है या ये 3 टर्म्स दी हुई हैं, और आपको उसी के अकॉर्डिंग, अगर ये इंडिविजुअल टर्म है इट्स ओके, अगर नहीं दिया देन यू विल बी लुकिंग फॉर दीज 3 टर्म। सपोज कर लो 3 में से 2 दिए हैं, so that means third is assumed to be 0। so that is operating surplus। then one part is mixed income, इसमें इसकी स्लाइड मेरे ख्याल से नहीं होगी। mixed income, that is income of the self-employed। what is mixed income? income of the self-employed, income from property as well as work। एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान में काम कर रहा है, दुकान उसकी प्रॉपर्टी भी है और उससे वो इनकम भी अर्न करना है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड वर्क, दैट इज इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यूजुअली ये शॉपकीपर्स, फार्मर्स, उनकी इनकम को आप सेल्फ एम्प्लॉयड में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ बिफोर
we come to the numerical portion, there are certain precautions which you must know. न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब इन प्रिकॉशंस को आप अच्छी तरह से समझते हो. नाउ फर्स्ट precaution is only factor income which are earned by rendering productive services are included. कि प्रोडक्टिव सर्विस कोई, जैसे मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो उसके लिए जो मेरे को इनकम मिले, दैट इज इनकम एक्रूड टू यू, दैट विल बी इंक्लूडेड. ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम. अब ये ट्रांसफर इनकम क्या है? You are getting money without doing any work. For example, old age pension. Why you are getting old age pension? Because एक उम्र हो गई, 60 साल हो गई, 60 साल के बाद वेरियस गवर्नमेंट्स, वेरियस स्कीम्स आर देयर जो ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती हैं. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट सिंस यू आर अनएम्प्लॉयड एंड गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड इफ द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड ही विल बी गिवन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. स्कॉलरशिप, आपको कॉलेज पढ़ते हुए, स्कूल पढ़ते हुए कोई स्कॉलरशिप दी जाती. अगेन दिस इज नॉट फॉर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स. दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इनकम मेथड. आप न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान से देखेंगे कहीं ये चीज़ें तो नहीं आ गई हैं. अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो जस्ट रिमेंबर कि ये चीज़ें आपने नहीं इंक्लूड करनी है. नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड. कोई भी सेल और परचेज सेकेंड हैंड गुड्स की वो इंक्लूड आप नेशनल इनकम में नहीं करते. बट इन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड क्यों नहीं इंक्लूड करते? बिकॉज इनकी वैल्यू जो है पहले जब ये नए प्रोड्यूस हुए थे वो नेशनल इनकम में आ गई. बट यू मस्ट रिमेंबर, although the sale and purchase of second hand goods are excluded, the commission paid on sale of these goods is included. Why? भाई ऐसे है, वो सर्विस तो आपने जो सेल एंड परचेज किया वो तो करंट ईयर में प्रोवाइड की है, जबकि इनकी प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर्स में हो चुकी है. सो ओनली इनकम ऑफ करंट ईयर इज इंक्लूडेड. दैट इज, आपने सेल की है, उस पर ब्रोकरेज पे की है, दैट ब्रोकरेज is for the services provided in current year, so that will be part of this national income method. Now next, that is imputed rent of owner occupied dwellings. मैं अपने घर में खुद रहता हूँ, I'm not paying any rent, तो इसका एक imputed मीन एक गेस्ट रेंट, मार्केट वैल्यू के बेस पे imputed रेंट कैलकुलेट किया जाता है कि इस बिल्डिंग का अगर ये मार्केट से परचेज किया जाता तो इसका रेंट क्या होता. दैट इज imputed rent. And value of production of self consumption is included, but value of self consumption, again self consumption, जैसे फार्मर है वो कुछ गुड्स अपने घर के लिए रख लेता, अपनी प्रोडक्शन में से एक पार्ट उसने रख लिया, इसका फिर imputed वैल्यू आपने इंक्लूड करनी है. लेकिन आपको ये बता दूं, जब आप डिफिकल्टीज ऑफ इनकम मेथड पे आते हो तो दिस इज दी वन ऑफ दी डिफिकल्टी आल्सो, क्योंकि imputed वैल्यू अब एक मोर और लेस एक गेस वर्क पे, अब एक फार्मर ने कितने प्रोडक्शन के कितना हिस्सा अपने घर में रख लिया, ओनली एक गेस वर्क. सो वो थोड़ा सा एरर का रहता है कि इम्प्यूटेड वैल्यूज आ. लेकिन ये इकोनॉमिक्स में, साइंस ऑफ एस्टिमेशन, आप इकोनॉमिक्स में देखोगे कि ये इम्प्यूटेड वैल्यू का कंसेप्ट हम बहुत जगह पर यूज करते हैं. देन अब इसमें क्या लिखा है, जस्ट वन मोर, सेल्फ कंजम्पशन सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड. हाउसवाइफ, मैं अपने बेटे को खुद पढ़ा लूँ विदाउट एनी रिवॉर्ड तो उसको आप, उसका मेरे को कोई पेमेंट नहीं है, वो नहीं, सेल्फ कंज्यूम सर्विस नहीं इंक्लूड होगी. सेल्फ कंज्यूम गुड्स की इम्प्यूटेड वैल्यू दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नाउ इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज. नाउ ये तो बहुत क्लियर है कि इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम है, चाहे वो इस मेथड में है, एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, इलीगल वर्ड्स हमारे इस मेजरमेंट में नहीं आता. विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? अचानक कोई लॉटरी लग गई, ये आपने इंक्लूड. वेल फ्रेंड्स, कमिंग टू न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इनकम मेथड, बिफोर आई कम टू न्यूमेरिकल देयर आर फ्यू ट्रिक्स. क्या कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट डोमेस्टिक इनकम क्या होती है. डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट.
आपको पता होना चाहिए कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, एंड नेशनल इनकम दैट इज NNP at FC. Before you move ahead, आप लोगों को कुछ बेसिक्स है जो पता होने चाहिए. ये दो टर्म होगी, डोमेस्टिक इनकम NDP at FC, नेशनल इनकम NNP at FC. Now next is I'm going to give you 6 basics. कि एक टर्म है that is given on market price and you have to move to factor cost. First मार्केट जैसे जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और आपको कहा जाता है जीडीपी एट एफसी जाओ, तो आपने सिंपल माइनस नेट. व्हाट इज दिस नेट? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट एंड रिवर्स इट, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस. अगर टर्म फैक्टर जीडीपी एट से आपको दिया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया और आपको कहा जाता है जीडीपी एट एमपी निकालो, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से आपने नेट प्लस कर देना है, रिवर्स. दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ अबव टर्म नेट. देन नेक्स्ट थर्ड टर्म इज डोमेस्टिक टू नेशनल. कि कोई टर्म डोमेस्टिक दी हुई है, जीडीपी एट एफसी दिया, आपको कहा जाता है जीएनपी एट एफसी निकालो, देन सिंपल प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? दो टर्म्स हैं कि कोई हमारा रेजिडेंट बाहर जाके इनकम अर्न करता है, इंडिया में भेजता है, और फॉरेन का रेजिडेंट यहां आकर इनकम अर्न करके बाहर भेजता है. तो दोनों का पहले अपने रेजिडेंट को और फिर सपोज कर लो हमारे रेजिडेंट ने 20 प्लस उसने 30 भेजे, 20 माइनस 30, उसने 30 भेजे, तो टोटल डिफरेंस जो है 10 का वो आ जाएगा. डोमेस्टिक टू नेशनल, हमारा रेजिडेंट पहले रखना है, उनका बाद में माइनस, तो जो भी होगा वो आप देख लोगे क्या आता है. देन फोर्थ इज नेशनल टू डोमेस्टिक. दिस इज अगेन सिंपल माइनस NFYA. सीधी सी बात है कि डोमेस्टिक मीन डोमेस्टिक टेरिटरी, अपनी टेरिटरी के अंदर रन कर रहे हैं, इसलिए इसमें NFYA नहीं होता. और नेशनल मीन्स कहीं से भी आप इनकम कर रहे हो जो इन कंट्री में आ रही है, देन NFYA ऐड हो जाता है. NFYA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. आफ्टर स्टडिंग दीज few basics, now let us come to this operating surplus. First numerical, calculate operating surplus and domestic income. So first thing is operating surplus. Now operating surplus आपको पता है, तीन टर्म्स आपको बताई हुई है मैंने, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. ये तीन टर्म्स आपको बताई गई हैं, दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. अब इसमें देखते हैं क्या दिया. रेंट एंड इंटरेस्ट, ये दो टर्म्स इसने इकट्ठी दे दी हैं, रेंट एंड इंटरेस्ट, दैट इज 800 प्लस प्रॉफिट या तो प्रॉफिट दिया होगा आपको पूरी कंबाइंड टर्म, नहीं प्रॉफिट कंबाइंड टर्म दिया हुआ तो आपको पार्ट्स में मिलेगी. जैसे प्रॉफिट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? डिविडेंड दैट इज 940, देन सेकंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज 300, एंड द फोर्थ टर्म इज कॉर्पोरेशन टैक्स 460. यू एड इट, यू विल गेट 2500. देखो 8 9 1740 2040 plus 460, that is 2500. That is operating surplus. Now next is domestic income. Again, what is domestic income? That is NDPFC. Simple operating surplus plus CE. CE stands for compensation of employees. Mixed income अगर दी हुई है mixed income
दैट विल गिव यू एनडीपी एट एफसी। अभी आपने ये काउंट किया है 2500 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000 and mixed income is given as 200, so simple 4700. now listen, ये जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, जस्ट रिमेंबर कि ये पोर्शन, ये न्यूमेरिकल्स कभी ना कभी आपके सीबीएसई के फाइनल क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं से वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आपने एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे जाने से पहले आप सब सिंपल एनडीपी एट एफसी निकालो। एनडीपी एट एफसी, यू नो एनडीपी एट एफसी, दिस इज सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, रॉयल्टी देख लो है तो ऐड कर लो, प्लस दिस इज मिक्स्ड इनकम, सी प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, and anything left? No. Domestic, okay, done. Now CE, that is 250. then rent को देखो कहाँ है, this is 30. प्रॉफिट को देखो कहाँ है, प्रॉफिट इज 80. इंटरेस्ट को देखो कहाँ है, 40. और मिक्स्ड इनकम को देखो, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 600. सो यू एड इट, क्या बनता है देखते हैं, 640 और 720, 750, दिस कम्स टू 1000. दैट इज एनडीपी एट एफसी. आपको चाहिए, उससे उसने पूछा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यू आर ऑलरेडी हैविंग एनडीपी एट फैक्टर प्राइस. अभी आपको कुछ बेसिक्स बताए, अब इन टर्म्स को इक्वलाइज कैसे करना है, फैक्टर कॉस्ट टू एमपी, एमपी टू एफसी आपको बताया था माइनस नेट, तो फैक्टर कॉस्ट टू एमपी जाना है तो प्लस नेट, ये इक्वल होगी पीपी डोमेस्टिक टू नेशनल, दैट इज अगेन प्लस NFYA. Let us see, NDP at FC is 1000 plus net देखें, this is 10 plus, अब NFYA is very ticklish term, आप इसको बड़े ध्यान से करो, दो है, from abroad what we are getting minus to abroad which we are paying, so from abroad I suppose इस न्यूमेरिकल में है नहीं, इज इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसको करेंगे 0 माइनस फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, आपने कितना पे किया, दैट इज -10, तो ये क्या बनेगा 1000 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1020. आप इस न्यूमेरिकल में जो सबसे मुश्किल टर्म है वो यही है कि आप ये ध्यान रखो कि NFYA पूरा टर्म का पता होना चाहिए, क्या पे कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, पहले रिसीवेबल पहले, पेबल बाद में, रिसीवेबल माइनस पेबल, अब पेबल माइनस में थी इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया. नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नेशनल इनकम. अगेन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले, मैं तो सिंपल, डोंट वायलेट दी स्टेप्स, पहले आप एनडीपीएफसी पे जाओ, एनडीपीएफसी पे जाओ, एनडीपीएफसी पे गए, सीई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमवाई. Now what is CE? This is 2000, and again for operating surplus
the terms, 3 terms are given: profit, rent and interest. That is 800 plus 300 plus 250. And mixed income, let us see if it is given. Yes, given 7,000. So if you add it, क्या बनेगा? 7 और 2 9, 9,800, 10,200, अगेन 9 7 2 10,100, ये बनेगा 10,350 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप ऐड करके देख लो, मे बी देयर मे बी एरर आल्सो. आपने कंफर्म होना है. आपसे पूछा गया है नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी. और एनएनपी एट एफसी आपको पता है, एनडीपी एट एफसी, एफसी डोमेस्टिक टू नेशनल हमने जाना है, प्लस NFYA. अगेन वो टर्म आ गई 10350 प्लस, पहले रखनी है रिसीवेबल टर्म. देखें क्या दिया है रिसीवेबल, टू अब्रॉड दिया है, नेट फैक्टर इनकम. अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान दो, ट्रांसफर्स ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई. करंट ट्रांसफर पेमेंट्स आपको मैंने पहले ही कह दिया कि इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. दिस इज इनकम, net factor income to abroad, that is 0 minus 60, that comes to 10290. This is the third numerical. Now friends, I will be devoting one lecture especially for numerical only. आज हम ये सिर्फ 3 numericals कर रहे हैं. आप इस YouTube चैनल पे जाएं, इन न्यूमेरिकल्स को, इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें. आपको मैंने पहले भी कहा कि ये चैप्टर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट. 3 लेक्चर सीरीज आ रही है. इनकम मेथड ये है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सपेंडिचर मेथड मिलेगा और फिर वैल्यूएटेड मेथड. और तीनों घबराने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सिंपल, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. डोंट जंप, जो चीज़ सबसे पहले ड्राइव करनी है वही करो, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट. दिस इज मेरे हिसाब से अगर स्टेप वाइज इस चैप्टर को किया जाए, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर. सो फ्रेंड्स, आखिर में ये दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लेक्चर्स की क्वालिटी और ऊंचा खींच लेंगे, और साथ ही साथ आपको क्वालिटी मटेरियल एज आई प्रॉमिस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू. आपको जाते जाते ये है कि यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स पे जाएं, इस वीडियो को देखकर आप सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, हमें सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं. थैंक यू एंड सी यू अगेन. थैंक यू.